Assalamu alaikum, class 7. Last time we have discussed page number 322, exercise 13a, question number 6a and b part. Now we will start at c part. It is on my page number 322, exercise 13a. Exercise 13a, question number 6c part. There are three semicircles. Each of these two small circles are having same diameters. Each of its diameter, when you combine these two diameters, it is 18 centimeters, which means you have to divide it into two equal parts. That will be 9 centimeter in each, which means diameter of each small circle is 9 centimeter, while diameter of this big semicircle is 18 centimeter. We have to find its perimeter and its area. So first, I'm going to find the perimeter of this shape. There are three semicircles. Two semicircles are having same diameter, which is 9 centimeter, and one semicircle is having diameter of 18 centimeter. To find its perimeter, we actually need to find the circumference of these three semicircles. Formula to find circumference is pi d. Because we are given with a diameter, we will use that pi d for the circumference. Exercise 13a, question number 6c part. First semicircle and the other two semicircle. You are given that this length is 18 centimeter. First, we are going to find its perimeter. To find its perimeter, we will find the circumference. Circumference of two small circles, each of diameter 9 centimeter, because the complete length is 18 centimeter, and we have to divide it into two equal parts. So each of part will be 9 centimeter. So I'm going to use pi d1. This is my 1, 2, and 3. For my convenience, I'm going to write 1, 2, and 3 over here. Plus pi d2 plus pi d3. Because these are semicircles, so I'm going to divide all these circumferences on 2, because we are taking on the half part of the circle. Pi d mean I'm going to take pi common from all these three. Pi by 2 आप सबसे common लेंगे, आपके पास बचेगा d1 plus d2 plus d3. Pi by 2 as it is. d1 is 9, 9 and 18. 9 plus 9 plus 18. 1 by 2 को आप separate कर लें. The value of pi is 22 by 7. 9 plus 9 is 18. 18 और 18 आपके पास हो जाएंगे 36. So this is 11 by 7 multiplied by 36. I have to multiply 36 and 11. So 396. 396 divided by 7. Now I'm going to solve this fraction into the mixed fraction. 396 divided by 7. 7 5s are 35. 4 and 6. 7 6 are 42. 456 whole 4 by 7 centimeters, because circumference is always in centimeter. Perimeter तो आप इसको p से represent कर लें तो ये काफी आसान हो जाएगा. वो सिर्फ understood बात है कि perimeter of the circle is actually its circumference. तो मैंने वही सारा काम आपके पास किया. You can give your answer in decimals as well. अगर आप चाहें आप decimals में लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं है. mixed fraction में लिखना है, mixed fraction में लिख लें, दोनों ठीक है. This was question number 6c part. Now I need to find its area.
सेम शेप का आपने सेकंड पार्ट, इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर, क्योंकि मैंने 3 सर्कल्स लिए हैं, पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर प्लस पाई आर थ्री स्क्वायर। क्योंकि हाफ है तीनों तो आप इनको 2 पे डिवाइड कर लें। पाई बाय 2 और सबसे कॉमन ले लें, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर आपका बचेगा। अब ये 9, 9 और 18 हमारे पास डायमीटर्स थे। डायमीटर्स का मजीद हाफ करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, इसके रेडियसेस निकल आएंगे। अगर डायमीटर 9 है तो 9 का हाफ कितना होता है, 4.5। इसका मतलब है कि इन दो सर्कल्स का जो आपके पास रेडियसेस होंगे, इन दो सर्कल्स के जो रेडियसेस होंगे वो होंगे 9.5। क्योंकि एक लेंथ पूरी 9 है, ये 9 है, हाफ करेंगे तो ही आपका रेडियस निकलेगा। तो 9 का होता है 4.5 और यहाँ से 18 का हम 4.5 स्क्वायर, 4.5 स्क्वायर और प्लस 9 स्क्वायर। पाई बाय 2 वैसे रहने दें, इसका डेसिमल पहले खत्म कर लें, फिर स्क्वायर ले लें हम, और 9 का स्क्वायर वैसे 81 होता है। 5 9 जा 45 कर लें, 5 2 जा 10, यहाँ भी 9/2 आ जाएगा। एरिया आपके पास आ जाता है पाई बाय 2 इंटू 9/2 स्क्वायर प्लस 9/2 स्क्वायर प्लस 81। पाई बाय 2, the square of 9 is 81/4 plus 81/4 plus 81। पाई बाय 2 81/4 हो जाएगा 162/4 प्लस 81। अब इसके साथ ऐड करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, चाहे आप कैंसिल कर लें अभी। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपके पास हो जाता है 81/2 प्लस 81। एलसीएम लिया 2, first 81 will as it is, 2 into 18 is 16 and it will be 162। I'm going to separate this 1/2 and the value of pi is 22/7 multiplied by 162 plus 18, 243 divided by 2। 2 और 1 3, 8 और 6 14, 4 और 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डिवीजन कर लें, ये 11 हो जाएगा। 7 के टेबल में देखने कटिंग, 7 के टेबल में कटिंग नहीं हो रही, आपके पास जाएगा 11 मल्टीप्लाई 243 डिवाइडेड बाई 2 7 जार 14, 2 7 जार 14। यहाँ से आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करके आंसर अपना मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, और ये एरिया वाला ये वाला काम आप लोगों ने खुद कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट था जिसमें हमने एरियाज फाइंड आउट किए हैं। हमारे पास ये 9 9 और 18 डायमीटर्स थे। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियसेस चाहिए, तो हमने रेडियसेस के लिए 9 को 4.5 4.5 और 18 को 9 उसके मजीद हाफ्स कर लिए, तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर वन स्क्वायर, पाई आर टू स्क्वायर, पाई आर थ्री स्क्वायर। मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए पाई बाय 2 कॉमन ले लिए, आर वन स्क्वायर, आर टू स्क्वायर, आर थ्री स्क्वायर बचेगा। आर वन और आर टू दोनों 4.5 है, आर थ्री इज 9। डेसिमल खत्म किया मैंने, 45/10 45/10 और 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। 45/10 की 5 पे कटेंगे, 9/2 9/2 प्लस 81 आ जाता है। उनके स्क्वायर्स भी थे, 9/2 का स्क्वायर 81/4। इनको हम दोबारा 81/2 एलसीएम लेके ऐड किया, पाई की वैल्यू 1/2 की वैल्यू प्लेस की, हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपने अपना आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में
खुद लिखना है। ये हमने किया है जी क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट मीटर और एरिया हमने फाइंड आउट किया। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट एरिया में यहाँ से स्टार्ट किया।